So business intelligence is a mechanism in which you can extract the data from the different databases or source systems, and then you can transform those data. You can clean those data and then represent to form some intelligence reports. Okay, to form some intelligent report on which a business user or a management can take the decision. ये होता है आपका business intelligence. ठीक है? So MSBI Yes, sir. is a tool, is a proprietary of Microsoft, which composed of 3 different components. MSBI package में आपका Yes, sir. 3 different components है. Let me tell you, first component is SSIS, SQL Server Integration Services. Okay, Yes, sir. SQL Server Integration Services. Then उसके बाद आपका काम आएगा SSAS, Analytic Services. उसके बाद आएगा SSRS, SQL Server Reporting Services. So जो 3 component है ये ट्रेनिंग सेशन में all these 3 will be covered. Now this particular integration service is required to create a data warehouse. इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट है डेटा वेयरहाउस. ठीक है. इसका आउटपुट है डेटा मार्ट. Art. ठीक है, एंड देन इसका आउटपुट है डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स. ठीक है, SSIS is the integration services. The role of SSIS is to collect the data from different systems, from different platforms, and then integrate them and form a single and central database called data warehouse. And then analytic services is used to create multi-dimensional analysis and to create views, to create schemas. Those are called data mart. Make sense? And then encoding services is used to load those data marts and those views to form of visualizations that in form of dashboard or reports. Clear? जी. This is all about the basics or the product portfolio of Microsoft Business Intelligence. Now let me take you to the presentation that what we will be learning in the entire session. The presentation will help you to understand the following things. First is what is database. Second is what is OLTP and OLAP. You will see the differences between OLTP and OLAP. I will tell you what is those two. And then ETL, what is ETL tool and what are the use of this ETL tool. What is the use of ETL in data warehouse. Understand the scope of data warehouse, the concept of data warehouse. We'll understand the visual analytics and enterprise reporting, and then different type of BI tools in the market, and then finally we'll come to the specific, that is MSBI. So this is all about the course. Basically this presentation is all about. Now let me tell you the database. So I'm treating you as a fresh student who's is fresh and is knowing nothing. So let me tell you what is a database. Database is a place where a collection of record will be maintained in a structural way. Structural way means a fixed set of rows and fixed set of records or columns. So that is called as the structural data. So let me tell you what is a database. Now आप कुछ information type कर रहे हो Word document में, Wordpad में, you have written a paragraph. Can I treat this as a database? No. But
because this database data is not a structural data. बट आप एक्सेल में एक स्प्रेडशीट मेंटेन कर रहे हो, एक बैलेंस शीट बना रहे हो, एक अकाउंटिंग शीट बना रहे हो, दैट इज अ डेटाबेस. जी ओके, बिकॉज अच्छा उसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है स्ट्रक्चरल वे में मेंटेन किए गए हैं, फिक्स सेट ऑफ रोज एंड फिक्स सेट ऑफ कॉलम्स. सो लाइकवाइज देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डेटाबेस वी हैव, जिसमें एक्सेल में आप कुछ क्वेरी कर सकते हो, कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हो, आप उसको टोटलिंग निकाल सकते हो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन कर सकते हो जो वर्ड में पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स व्हाई एक्सेल, एमएस एक्सेस, your CSV file, XML, those are all the databases. These are small, but these are called as a flat file databases. Flat file. Okay. Now, likewise, there are also other RDBMS, relational database management systems, are there, like SQL Server, uh, Oracle, DB2, जो IBM का प्रोडक्ट है, और there are many more. HP Vertica, MySQL, MongoDB, your Netezza. There are many more databases are there. So this is what about database, correct? Where we are storing the information in the structural way, so that easily we can query them and we can get into a report. Clear? यस सर नाउ डेटाबेस होता है, एक सेंट्रल डेटाबेस होता है जहां से सारे इंफॉर्मेशन सेंट्रली जाके स्टोर होता है. उसके बाद OLTP. OLTP क्या होता है? ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, ये जो पिक्चर में, जस्ट अज्यूम दीज आर ऑल द जी ATM मशीन्स और बैंक का जो मशीन है. नाउ देयर इज अ डेटाबेस व्हिच इज सेंट्रली लोकेटेड इन मुंबई हेडक्वार्टर ऑफ द बैंक. Now all the data they are doing in transaction, they are storing centrally in a repository, okay, in a location. So that is, ये जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, दैट इज कॉल्ड OLTP. आप कुछ भी सेव करते हो, दैट इंस्टेंटली सेव इनटू द डेटाबेस एंड ऑनलाइन इट इज posted into the database. It is not posted into their own systems. They are posted in a central server. Clear? So this is all about the OLTP. OLTP का जो abbreviations है, OLTP is the abbreviation which full form is online transaction processing, that handles real-time transaction which inherently have special requirement. So कोई भी बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, IRCTC का इंटरनेट बुकिंग हो, या फिर कुछ भी आप रियल टाइम एप्लीकेशन देख लो, मेक माई ट्रिप हो, कोई सिनेमा टिकट बुक करे, वो सारे OLTP सिस्टम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है और डेटा जाके सेंट्रली सेव होता है एक सर्वर में. ठीक है, आप जो भी करते हो वो इंस्टेंट होता है. आप इंस्टेंटली एंटर कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, टिकट बुक कर रहे हो, वो सारा इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली जाके सर्वर में सेव हो जाता है. मतलब इसमें डेटा एंट्री होता है जाके सर्वर में. आप रिपोर्ट भी देखते हो सिलेक्ट करके अवेलेबिलिटी है कि नहीं टिकट का, और इंस्टेंटली सेव भी करते हो. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. मेक सेंस? दैट इज, ये जो सिनेरियो है डेटा ऑनलाइन में स्टोर करने का एंड रिट्राइव करने का, दैट इज कॉल्ड एज अ OLTP. ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक सिनेरियो और एक प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस. ठीक है, और दूसरा हो गया OLAP. जो आप लोग जो रिपोर्ट देखते हैं, जैसे कि कोई डैशबोर्ड में, कोई रिपोर्ट्स में, कोई यू नो कोई विजुअलाइजेशंस जो होता है, वो सारे जी एक दूसरे एक डेटाबेस में स्टोर होता है जिसको बोलते हैं OLAP. We will see that in a couple of next slides. So, but anyway, what user requirements? User saying कि my data should be integrated across the environment or the enterprise. अगर आपका सॉफ्टवेयर एक ही सॉफ्टवेयर है और उसमें एक ही डेटाबेस है, Oracle है. Now, being an organization, being an enterprise, you may have multiple applications. मान लो आपका एम्प्लॉई एप्लीकेशन है जिसमें पेरोल प्रोसेसिंग होता है जो ओरेकल का डेटाबेस है. आपका अटेंडेंस सिस्टम है, वो एक दूसरा डेटाबेस है. आपका ERP है जिसमें इनवॉइसेस बनता है, प्रोडक्शंस होता है.
ऐसे करके आपका 4-5 एप्लीकेशन है जिसका डेटाबेस तरह तरह का डेटाबेस होता है. बट यूजर वांट्स टू सी अ रिपोर्ट जो हायर मैनेजमेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एंड टू एंड सब कुछ देखते हैं. वो चाहते हैं कि एक रिपोर्ट देखने के लिए जिसमें सारे एप्लीकेशंस का डेटा सेंट्रलाइज होके एक कंसोलिडेटेड विंडो में उनको दिखे. हाउ इट वुड बी पॉसिबल? That could be possible if the data would be integrated and to be placed in a single platform. Okay, so Okay, sir. there only, due to this only, the data warehouse requirement is come into picture. I have Oracle, I have SQL Server, two different database platforms, two different databases. Can I integrate those directly? No, not possible. Then I have to bring them into a single portfolio or single platform. वो प्लेटफॉर्म होता है डेटा वेयरहाउस, जिसमें मैं सारे डेटा को एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म में, यूनिफॉर्म पैटर्न में, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में लाता हूँ. उसके बाद उसको जॉइन करके एक कंसोलिडेटेड डेटाबेस बनाता हूँ. उसको बोलते हैं डेटा वेयरहाउस. सो broadly, data warehouse is just a database which holds the data of various different servers and systems in a single platform. इसको क्वेरी करने से आपको SAP का, Oracle का, SQL सर्वर का, MySQL का जो 5 सॉफ्टवेयर है आपका, सारे सॉफ्टवेयर का डेटा एक ही डेटाबेस में दिखे. और कुछ नंबर ऑफ टेबल्स ज्यादा हो सकते हैं, बट वो सारे टेबल्स जो है एक टाइप का डेटाबेस में है. मान लो SQL सर्वर में और मान लो नतीजा में. सो इज डेटा वेयरहाउस इज सॉल्यूशन? यस. कैन आई इंप्रूव माय डेटा यूजिंग द डेटा वेयरहाउस? सो आउटपुट ऑफ द डेटा वेयरहाउस, एज आई सेड, SSIS का आउटपुट होता है डेटा वेयरहाउस बिल्ड करना. सो लेट्स सी हाउ डेटा वेयरहाउस विल हेल्प अस. नाउ जैसे मैं आपको बोला कि ये एप्लीकेशंस है, डिफरेंट एप्लीकेशंस, ये उनका सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस है. नाउ इफ यू वांट टू सी द रिपोर्ट फ्रॉम अ सिंगल डेटाबेस, देन आपको सारे डेटाबेस का डेटा को लाके सेंट्रलाइज एक लोकेशन में रखना है. दैट इज कॉल्ड एज अ कन्वर्जेंस और डेटा कन्वर्जेंस, जो सारे अभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट बन पड़ा है. ठीक है. सो ये हो गया आपका डेटा वेयरहाउस. डेटा वेयरहाउस कैसे बनता है? व्हाट इज अ डेटा वेयरहाउस? इट यूजुअली कंटेन्स हिस्टोरिकल डेटा. आप इंस्टेंटली कुछ डेटा सेव करते हो सर्वर में एप्लीकेशन के थ्रू. वो डेटा जाके डेटा वेयरहाउस में प्लेस नहीं होता, वो जाके आपका OLTP डेटाबेस में रहता है. उसका जो ट्रांजैक्शन, उसका जो ओरिजिनल डेटाबेस है. उसके बाद डेटा वेयरहाउस में ये एक हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन होता है, जैसे कि उस दिन के, उस रात को वो सारे डेटा जो उस पर्टिकुलर डे में ऐड हुआ है, वो सारे एक जॉब के थ्रू जाके डेटा वेयरहाउस में पोस्ट हो जाता है और अगले दिन वो सारे डेटा वेयरहाउस में रिफ्लेक्ट होने लगता है. ठीक है. ठीक है सर. सो ये होता है आपका प्रोसेस. डायरेक्टली आप कुछ सेव करते हो, जैसे ATM में आप पैसा उठाए, आपका बैंक अकाउंट में इमीडिएटली अपडेट हो गया, बट बैंक का एक डेटा वेयरहाउस भी होता होगा जिसमें वो रिपोर्ट देखते होंगे. वो डेटा वेयरहाउस के इन्फॉर्मेशन वो 1-2 घंटे में रन करते होंगे या फिर मिडनाइट में रन करते होंगे, जो उनका सारे ट्रांजैक्शन डेटाबेस को लेके हिस्टोरिकल डेटाबेस में डालता है और वहां से वो रिपोर्टिंग करते हैं. अगर आपका एक सवाल आता है, अगर आपका ट्रांजैक्शन डेटाबेस है, आप उससे डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हो, क्यों आप डेटा वेयरहाउस सेपरेटली बनाते हो? रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपको एक विंडो में हर एक सिस्टम का डेटा चाहिए, एक स्क्रीन में, एक डैशबोर्ड में. वो एक रिक्वायरमेंट है. दूसरा बेनिफिट ये है कि आप जब रिपोर्ट देखते हो, वो रिपोर्ट इज एक्सेस फ्रॉम द डेटा वेयरहाउस व्हिच इज नॉट यूज्ड बाय द सिस्टम डायरेक्टली, द यूजर्स डायरेक्टली. जैसे यूजर जो है वो डायरेक्टली यूज करते हैं आपका OLTP और ट्रांजैक्शन डेटाबेस को. उससे वजह से अगर आप ट्रांजैक्शन डेटाबेस यूज नहीं करते हो इन द रियल टाइम सिनेरियो, then it is not putting any load on the transaction database. So that's the benefit of using data warehouse. To avoid load on the transaction databases and for reporting, we have created a separated
database. Now this is called OLAP. So data warehouse का जो structure है, जो design है, उसका जो database tables है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. OLAP server provides a better performance for accessing multi-dimensional data. मल्टी-डायमेंशनल डेटा किसको बोलते हैं? आपका जो टेबल में नॉर्मल जो टेबल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल जो SQL सर्वर टेबल में, उसमें आपका एक पेरेंट टेबल हो गया, एक चाइल्ड टेबल हो गया. नॉर्मल ऐसे ही डेटा रहता है, जैसे कि एक ट्रांजैक्शन टेबल और एक मास्टर टेबल. करेक्ट? ओके सर, ये करेक्ट. ऐसे ही रहते हैं ना. बट इसमें आपका जो OL AP में और जो डेटा वेयरहाउस में उसका जो डेटाबेस का जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो ऐसे नहीं रहता. वो मास्टर टेबल ट्रांजैक्शन टेबल ऐसे होके नहीं रहता. उसमें मास्टर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल दोनों को मिला के आप एक टेबल बना देते हो. ओके Do सर. you have any idea on normalization and denormalization? नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली एक टेबल को हम ब्रेक करके छोटे छोटे टेबल में स्टोर करते हैं और बाद में जब हम डेटा को रिट्राइव करते हैं हम उसको जॉइन करके एक व्यू में दिखाते हैं. नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट क्या होता है? डेटा जल्दी से स्टोर होता है और रिट्राइव भी होता है. बट एनालिटिक्स करने के लिए आपको अगर नॉर्मलाइज टेबल यूज करना है तो आपको 10, 12, 15, 20 टेबल यूज करना पड़ सकता है. इसमें आपको डिफिकल्ट होगा ज्वाइन करने के लिए. बट डेटा वेयरहाउस उसका ऑपोजिट है. इसमें वो टेबल्स को जो ब्रेक होके 15 टेबल बना है उसको ब्रेक करके 5 टेबल बना, उसको जोड़ के वो 5 टेबल बना देता है. मतलब डीनॉर्मलाइज कर देता है. छोटे छोटे टेबल को जॉइन करके फिर से एक व्यू टाइप का बना देता है ताकि अब जब डेटा वेयरहाउस से रिपोर्टिंग के लिए डेटा फेच करोगे आपको बहुत ज्यादा टेबल के लिए व्यू नहीं बनाना पड़ेगा. आपको एक टेबल में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ये उसका बेनिफिट होता है. ठीक है, डीनॉर्मलाइजेशन का. और OLAP का कॉन्सेप्ट जो है वही होता है. उसमें सारे टेबल्स का इन्फॉर्मेशन एक टेबल में स्टोर हो जाता है और दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. Now let me tell you what is the difference between OLTP and OLAP. जब मैं बोला OLTP जो है जैसे कि बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पेरोल, रजिस्ट्रेशन, ऑल द एप्लीकेशंस आर द एग्जांपल ऑफ OLTP. एंड OLAP जो है डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है. The tables are here normalized. Here in the OLAP the tables are denormalized. मान लो एक एम्प्लॉय टेबल हो गया. एम्प्लॉय में आपका नेम हो गया, एज, जेंडर, पेरोल वो एक दूसरे टेबल में होगा, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन वो एक दूसरा मास्टर टेबल में होगा. ऐसे करके एक एम्प्लॉय का 5 टेबल बन जाता है या 10 टेबल बन जाता है. वो नॉर्मलाइज वे में अगर उसका रखोगे. बट डेटा वेयरहाउस में कुछ ऐसा होता है कि वो फिर से उसको ज्वाइन करके एक टेबल बना देते हैं और यहाँ पे डीनॉर्मलाइज वे में रहता है डेटा. ठीक है, तो जब आप एक टेबल को सर्च करोगे आपको सारा इंफॉर्मेशन इसी में मिल जाएगा. बट दिस इज नॉट गुड फॉर इंसर्टिंग द डेटा. डेटा इंसर्ट के लिए डीनॉर्मलाइज फॉर्मेट यूज नहीं होता है, ये नॉर्मलाइज फॉर्मेट यूज होता है. ओके सर. बट सिलेक्शन के लिए आपको इसमें सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. उसके बाद in OLTP the tables are stored in objects. I mean in this transaction and master tables, whereas here in OLAP the tables are table object are like dimension and facts. I will tell you in the live session what is dimension and facts. Mostly जो मास्टर टेबल होते हैं वो एक तरह का डायमेंशन टेबल होते हैं, जो ट्रांजैक्शन टेबल होते हैं वो एक तरह का फैक्ट टेबल होते हैं यहाँ पे. ठीक है. ओके सर. OLTP is used for data modeling and OLAP is used for dimension modeling. So ये जो है थोड़ा आप इसको माइंड से बाहर करो. अभी you will be getting confused. आप यहाँ तक समझने की कोशिश करो. यहाँ पे ट्रांजैक्शन टेबल मास्टर टेबल का कॉन्सेप्ट होता है और यहाँ पे फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल का कॉन्सेप्ट होता है. मैं फैक्ट क्या है, डायमेंशन क्या है, मैं आगे आपको जाके बोलूंगा. ये है OLTP का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बोला. ये है नॉर्मलाइज वे. कैसे दिखता है आपको? एक टेबल, ग्रुप, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट. ये एक ही इंफॉर्मेशन 3 टेबल में स्टोर हुआ है.
एक ग्रुप आईडी के केस में मल्टीपल कैटेगरीज है, एक कैटेगरी के केस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। तो अगर आप फिल्टर करोगे, अगर आप एनालिटिक्स रिपोर्ट बनाओगे, यहाँ पे 3 टेबल को आपको फिर से ज्वाइन करके उसमें रिपोर्ट बनाना है। बट इन दिस टेबल OLAP आप देख सकते हो ये सारे के इंफॉर्मेशन ये एक टेबल में आ गया है। वही प्रोडक्ट आईडी, ग्रुप आईडी, ऑल द स्टफ्स दे हैव जॉइंड इट एंड देन दे हैव डीनॉर्मलाइज्ड इट। कैटेगरी का इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे है, ग्रुप का इंफॉर्मेशन भी है और प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है, सो कौन सा टेबल आपको इजी होगा एक रिपोर्ट बनाने के लिए? मैं आपको 3 टेबल दूं, आपको बोलूं एक रिपोर्ट बनाओ उस पे, या एक टेबल दो, किस पे आपको इजी होगा? सर सिंगल टेबल से जल्दी डाटा एक्सेस हो जाएगी। एग्जैक्टली। बट अब जब डाटा को स्टोर करोगे, आप ऐसे अगर स्टोर करोगे वो इजी होगा और फास्टर होगा परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, सो इसीलिए जो डेटा वेयरहाउस अपन लोग बनाते हैं, वो उसका जो मॉडल है OLAP मॉडल बोलते हैं उसको, और डीनॉर्मलाइज्ड टेबल्स बोलते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल टेबल्स को जोड़ के हम एक टेबल बना देते हैं। अगर आप देखोगे आपके डेटाबेस में अगर 100 टेबल होगा, उसी डेटाबेस का अगर आप डेटा वेयरहाउस बनाओगे वो 10 टेबल में आ जाएंगे। इसको जोड़ के हम लोग एक एक टेबल बना लेते हैं ताकि आपको सिलेक्ट करने के लिए इजी हो और रिपोर्ट बनाने के लिए भी इजी हो। व्हाट इज OLAP? OLAP में जब देखें, अभी ये OLAP का कॉन्सेप्ट है, ये OLTP का कॉन्सेप्ट है। OLAP जो है इसमें फैक्ट एंड डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आता है। फैक्ट क्या है, डायमेंशन क्या है? डायमेंशन आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी नेम, ग्रुप नेम, ये हो गया सारा नाम जो जितना होता है ना, क्लास नेम, स्टूडेंट नेम, कंट्रीज, date, month, year, those are all the dimensions. Whereas facts are like numeric data, जिसके ऊपर आप कुछ कैलकुलेशन कर पाओगे, जैसे कि यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, नेक्स्ट टोटल अमाउंट, टैक्स, वो सब फैक्ट्स हो गया। अगर आपको एक बार चार्ट बनाना है, एक चार्ट बनाओगे, आपको मैं बोलूंगा आप यू शो मी सब्जेक्ट वाइज मार्क, ओके, ऑफ ए स्टूडेंट। नाउ इसमें 2 चीज यूज होगा, एक होगा लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, दूसरा होगा मार्क। ठीक है, सिक्योर। तो सब्जेक्ट जो हो गए मैथमेटिक्स, साइंस, MIL, ऑल दोज सब्जेक्ट्स आर डायमेंशंस, whereas मार्क इज अ मेजर और फैक्ट तो बोलते हैं। जैसे कि अब एक चार्ट में बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, S1, S2, S3, ये हो गए सब्जेक्ट्स। ठीक है, और मार्क हो गया 10, 20, 50, 60, 80, 100, सारा हो गया मार्क। तो जो सब्जेक्ट में आपको जितना मार्क सिक्योर हुआ है उसको बेस करके एक चार्ट ड्रॉ होगा, है ना? ऐसे ही होता है। लाइन चार्ट अगर ड्रॉ होगा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे करके, ऐसे करके। तो इसमें आपका डायमेंशन कौन सा है और फैक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट जितना हो गया डायमेंशन हो गया, फैक्ट हो गया मार्क। फैक्ट को आप मिला के प्लस कर सकते हो, सब्जेक्ट को आप मिला के प्लस कर सकते हो। नहीं सर, आप टोटल मार्क को आप मिला सकते हो, टोटल सब्जेक्ट को आप मिला सकते हो। सर 1 मिनट सर, ये फैक्ट टेबल कंटेन द न्यूमेरिक वैल्यू सर। यस, जिसमें आप कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे कि सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, वो सारा हो गया आपका एग्रीगेशन फंक्शंस। इसको सारे को एग्रीगेशन फंक्शन बोलते हैं। आप 5 डेटा को एग्रीगेट करोगे, कैसे? एवरेज निकालोगे, उसका मिनिमम निकालोगे, मैक्सिमम निकालोगे, सम निकालोगे, ऐसे करके आप उसको एग्रीगेट करोगे। अगर वो न्यूमेरिक डेटा होगा तब जाके आप एग्रीगेट कर पाओगे ना। जी। अगर वो टेक्स्ट डेटा होगा आप उसको एग्रीगेट कैसे करोगे, सम कैसे करोगे उसका? नहीं ना। तो एक चार्ट जो बनाते हैं, चार्ट में यूजुअली एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो डेटा होता है, जो भी टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है, मान लो जो भी डेटा आप टेक्स्ट टाइप का डेटा जिसमें आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो, उसके बेस में आपको कुछ वैल्यूज चाहिए होता है। वो जो वैल्यूज हो गया फैक्ट, जो बेस डेटा हो गया जिसके बेसिस में आपको चाहिए होता है वेरिएशंस, वो होता है आपका डायमेंशन। ठीक है, और फैक्ट को मेजर भी बोलते हैं।
बीआई लैंग्वेज में फैक्ट को हम मेजर भी बोलते हैं, मेजर एंड डायमेंशन। ठीक है, ओके सर, तो डायमेंशन का जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको एक्स एक्सिस रखेंगे और फैक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो वाई एक्सिस होगा। एग्जैक्टली जैसे मैं आपको बोलता हूँ, नाउ यू टेल मी लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, यू वांट अ चार्ट विथ लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन बाय कंट्रीज। नाउ इसमें डायमेंशन में आपको बोला, मैं वर्ड में बोला, आप उसमें से डाटा निकालो। You show me, ओके you सर। tell me population is a value, is a numeric value, whereas यस country सर। names is a dimension. Now अगर मैं एक चार्ट डायमेंशन। बनाऊंगा, I will have to create list of countries, India, Pakistan, New Zealand, Bangladesh, all those countries and their population. ठीक है, population जो होगा country ठीक wise है। sum of populations होगा। तो वो हो गया आपका country, हो गया dimension, measure और ये fact हो गया आपका population। पॉपुलेशन। ठीक है, ये सारे बीआई, सर यहाँ तक नॉट ओनली एमएसबीआई, या सारे बीआई के बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं है, बट क्यू का कंसेप्ट अभी मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। क्या होता है क्यू? क्यू क्यू का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्या है क्यू एक्चुअली में सर? कौन सा क्यू? क्यू, अभी हाँ यू क्यू की बात कर रहा क्यू। हूँ अच्छा, जी। तो ये ये जो है डायमेंशन फैक्ट आपको पता चल गया। क्यूब क्या होता है? जो बिल्कुल लूडो, सर, बिल्कुल मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जो लूडो खेलते हैं, ठीक है, उसमें कितना फेसेस होता है? 6 फेसेस, है ना। क्यूब जो गेम होता है सर। अपना, 6 1 टू लेके 6 नंबर आता है, जो आपको घुमा के फेंकते हो, उसके बाद जो नंबर निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल क्या सर। होता है उसमें? आपको एक नंबर मिलता है जिसके ऊपर आपका नंबर डिस्प्ले होता है 1 2 3। 6 नंबर्स होता है। तो जैसे भी आप उसको फेंकते जी हो, कोई ना कोई नंबर आता है। वैसे ही बिल्कुल सर। आपको एक डेटा को देखने के लिए यू हैव अ डिफरेंट फेसेस। ठीक है, ओके से सर। आई हैव रेवेन्यू। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा सबसे पहला गोल है इसे मैं अपना रेवेन्यू निकालूंगा। ठीक है, मैं ओके अपना सर। कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करूंगा। दैट रेवेन्यू इज माई बेसिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। I am a businessman. I don't want anything. My purpose is to raise my revenue. Okay. Now revenue हो गया मेरा रिपोर्टिंग का पहला की फैक्टर और फैक्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरा रेवेन्यू आ जाएगा। नाउ आई वांट टू सी माय रेवेन्यू इन डिफरेंट फेसेस। मैं एक बार ओके सर। क्यूब फेंकूंगा, इसमें मेरा दिखाएगा ब्रांच वाइज रेवेन्यू। दूसरी बार क्यूब फेंकूंगा, वो दिखाएगा डिपार्टमेंट वाइज रेवेन्यू। थर्ड टाइम फेंकूंगा, वो दिखाएगा सेक्शन वाइज रेवेन्यू। फोर्थ टाइम फेंकूंगा, वो दिखाएगा मुझे प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, कस्टमर वाइज रेवेन्यू। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है? रेवेन्यू देखना और डिफरेंट डिफरेंट एंगल में देखना, है ना। तो जो मीन्स सर। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होता है, वो होता है मेरा डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे ओके सर। प्रोडक्ट हो गया, ब्रांच हो गया, कस्टमर्स हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, सेक्शंस हो गया, और यू नो मंथ हो गया, ईयर हो गया, वो सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन हो गए। मैं किस डायमेंशन से वो फैक्ट को देखूंगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन मुझे डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए मैं चाहूंगा मेरा हर एंगल से मुझे वो रिपोर्ट दिखे। कौन सा कस्टमर का सबसे कम रेवेन्यू है, मैं उसको डिलीट कर दूंगा। कौन सा एम्प्लॉय का सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, मैं उसको अवार्ड दूंगा। तो अल्टीमेटली मैं देखता हूँ रेवेन्यू को और वेरियस एंगल में देखता हूँ। और वो जो सर ये यस सर, जस्ट लाइक एक तरह का ग्रुपिंग हो गया। एग्जैक्टली ग्रुपिंग के बेस पर हम डाटा को देखेंगे, या तो एम्प्लॉय वाइज देख लेंगे, या डिजिग्नेशन वाइज देख लेंगे, या परफेक्ट उसको डिपार्टमेंट वाइज देख लेंगे। यही क्यों है सर? परफेक्ट। सो योर डेफिनेशन इज ओके। अ मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस इज कॉल्ड एज अ क्यूब। ये एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें आप मल्टीपल तरह का डायमेंशंस रखते हो, और आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है एज ए बिजनेसमैन, यू वांट टू सी दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और डायमेंशंस। That is what we call as a multi-dimensional analysis. That's what the cube is. ओके। Okay.
नाउ ये होता है डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर्स। हम अभी आगे से OLTP के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अपना डेटा वेयरहाउस एक गोल है यहाँ पे, और एनालिटिक्स में आएंगे। एनालिटिक्स में अपना मेन पर्पस है टू बिल्ड अ डेटा वेयरहाउस और टू बिल्ड अ OLAP डेटाबेस। ओके, सो उसमें मेरा जो पर्पस है, आई वांट टू बिल्ड अ व्यू, I want to build a view by joining multiple tables, or I want to build a structure or data model by joining multiple tables, so that जब मैं वो क्यूब और जब मैं वो एक डायमेंशनल एनालिसिस को कॉल करूंगा, क्यूब जो होता है वो एक तरह का व्यू ही होता है, ठीक है, क्यूब जिसमें सारे के सारे डायमेंशंस होते हैं और मेजर्स होते हैं। तो अगर वो अब वो क्यूब को कॉल करते हो, वो क्यूब में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, आपको दोबारा और कुछ स्क्रिप्टिंग लिखने की जरूरत नहीं है ज्वाइन करने के लिए। वो होता है क्यूब, ठीक है। और क्यूब का अंदर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरह का कुछ होता है, एक होता है स्टार स्कीमा, एक होता है स्नोफ्लेक स्कीमा, ठीक है। स्टार स्कीमा में मान लो ये हो गया मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट और ये हो गया मेरा डायमेंशन, ये हो गया डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, ब्रांच, एम्प्लॉय, डेट, मंथ, क्वार्टर, कस्टमर, प्रोडक्ट। और मेरा फैक्ट हो गया, मेरा हो गया रेवेन्यू, सेल्स, लॉस, प्रॉफिट, क्वांटिटी। इतना हो गया मेरा फैक्ट। ओके सर। तो ये सारे के सारे डायमेंशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू है मेरा फैक्ट टेबल को, ठीक है। ओके तो सर। बोलते हैं स्टार स्कीमा। आप वो डेफिनेशन को पढ़ सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। एंड देन यहाँ पे जो है स्नोफ्लेक, एक हो गया टेबल, इस पे सेंटर टेबल, इसमें सारा का सारा फैक्ट आ गया, और पहला जो डायमेंशन टेबल यहाँ पे आ गए, और कुछ डायमेंशन टेबल का भी कुछ मास्टर्स टेबल्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया सेल्स रेवेन्यू, ये सारे फैक्ट जो है ये टेबल में आ गया, फैक्ट टेबल में, ठीक है। ओके सर। और इसमें डायमेंशन टेबल है प्रोडक्ट, इसमें डायमेंशन टेबल है कस्टमर। नाउ ये प्रोडक्ट का कुछ मास्टर टेबल भी है, ये हो गया प्रोडक्ट कैटेगरी, ये हो गया कस्टमर, ये हो गया कस्टमर कैटेगरी। तो मान लो ओके सर। ये जो स्कीमा हो गया, इसमें डायमेंशन टेबल का भी मास्टर टेबल्स होते हैं, ओके सर। मतलब उनका लुकअप टेबल्स है, बट यहाँ पे उनका कुछ लुकअप टेबल डायरेक्ट है नहीं, वो सारे के सारे ऑल रिलेटेड टू अ फैक्ट टेबल। That's why there looks like a star, whereas this looks like a star, as well as they are having some different childs or masters, ठीक है। ओके सर। तो what is MSBI? MSBI is a tool, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें बहुत सारा फीचर्स है, जैसे कि SSIS है, SSRS है और SSAS है, जो हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करके इंटीग्रेट करके डेटा वेयरहाउस बना के हम उसको रिपोर्टिंग करते हैं। ये हो गया ब्रॉडली इसका फीचर। इतना सर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो इसे समझो कि आपको दिमाग में हर तरह के बैठ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। डेफिनेशन कोई भी पढ़ सकता है। सो MSBI में डिफरेंट टाइप का फीचर्स होता है और एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, BI आर्किटेक्ट, ETL डेवलपर, क्यूब डेवलपर, रिपोर्ट डेवलपर। आपको इसमें सारे चीज को पढ़ना नहीं है, ठीक है। आप पहले ETL का काम करोगे, ETL डेवलपर का काम करोगे, उसके बाद हमको रिपोर्ट डेवलपमेंट करना है, और उसके बाद एनालिटिक्स बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो उसका सर्वर में पब्लिश करते हैं डेटा को, वो सब करते हैं। बट हियर इन द सेशन we will take databases, we will join those data, then we will form our data warehouse or a single database, जहाँ से अपना रिपोर्टिंग करना है, विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है। डिफरेंट रोल्स ऑफ BI डेवलपर, आप इसमें कैसा रोल लोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप रिपोर्ट डेवलपर बनोगे तो आपको विजुअलाइजेशन पे काम करना है, आपको ETL डेवलपर बनोगे तो आपको इंटीग्रेशन में काम करके आपको डेटा वेयरहाउसेस बनाना है, ठीक है। दे आर रोल्स। सर सेकेंड पॉइंट क्यूब डेवलपर, क्यूब डेवलपर सर, क्यूब डेवलपर मतलब आपको डेटा वेयरहाउस बन गया, डेटा वेयरहाउस में 50 टेबल आ गए, वो टेबल सारे को लेके आपको व्यूज बना के डेटा मार्ट बनाना है, इसमें सारे डायमेंशन और फैक्ट समा जाएंगे, ठीक है।
आपको बेसिकली PL/SQL प्रोग्रामिंग करके व्यूज बनाना है वहाँ पे। व्यूज मतलब ओके ओके क्यूब्स, ठीक है। ओके। वो क्यूब को अगर कोई फेच सर करेगा, वो क्यूब में सारे डायमेंशन सारे फिक्स होंगे। तो सर जब हम रिपोर्ट डेवलप करें तो मुझे रिक्वायरमेंट होगा ना SSS का? हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली आपको तो सब कुछ सीखना है ट्रेनिंग में, बट जब आप रियल टाइम पे काम कर रहे हो अच्छा। ना, आपको सारे जी जी। डिटेल में काम करना नहीं पड़ेगा। देयर आर बेसिकली ओके ओके। डिफरेंट डिफरेंट रोल्स। जो भी डेटा वेयरहाउस प्रोफेशनल्स होते हैं वो BI रिपोर्टिंग पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। आपको ओके सर। ट्रेनिंग में सब कुछ बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। उसके बाद आप जब ओके कैरियर सर। चूज करोगे, उसमें आप डीपर अंडरस्टैंडिंग करके एक पर्टिकुलर चीज में मास्टरी करोगे, ठीक है। वो चीज आपको ओके सारे सर। ट्रेनिंग में नहीं, आपको रियल टाइम में जब काम करोगे आप धीरे धीरे सीखोगे। और ट्रेनिंग में आपको सारे बेसिक सर चीज तो कवर किया जाएगा, जो जिसमें आप सीख के आप इंटरव्यू पास करोगे, एंड देन वी कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट। You can create a ETL project, you can सर create analytics, you can create a report. All three you can create. Tell me. sir here I want to take one suggestion. Sir here I need your suggestion. Which tool is better for me for future perspective? Sure. ETL developer या report? I would suggest to go for a report developer. Okay? Report developer. Yes. Okay. Because there are various analytics opportunities are there, which is even more than a ETL. So, because डेटा वेयरहाउस एक ऑप्शनल चीज है, ये मैंडेटरी चीज नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक डेटाबेस है उसमें आप रिपोर्टिंग का जरूरत पड़ेगा, उसमें डेटा वेयरहाउस की जरूरत नहीं पड़ता है। जी। बट रिपोर्टिंग हर जगह पे जरूरत ओके पड़ता सर। है। आपका डेटा वेयरहाउस चाहिए होता है ओके या नहीं चाहिए होता है, आपको रिपोर्टिंग चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। जी। तो हमने मेनली हम फोकस करेंगे सर इस पे। हाँ, हम फोकस करेंगे रिपोर्टिंग के ऊपर मोस्टली। सो आई विल कवर ऑल दिस ETL पार्ट, देन ट्यूब कैसे ओके बिल्ड करते हैं, सारे करने के बाद हम रिपोर्टिंग पे जाएंगे, और रिपोर्टिंग में हम रिपोर्ट्स बनाएंगे, विजुअलाइजेशंस बनाएंगे। सो दीज आर ऑल सम कंपैरिजंस ऑफ SQL सर्वर। ओके सर। आप देख सकते हो कॉस्ट कंपैरिजंस, एंड देन it's a comparison with Oracle and IBM. So I'm not going to do that here, because this is basically we are focusing on Microsoft here, so we will focus on Microsoft only. Okay, this is just a comparison in terms of base product, in terms of price, in terms of high availability. Okay, so now we'll see what is DWH data warehousing architecture. सबसे पहले तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा वेरियस डेटाबेसेस। आपको आपका कंपनी बोलेगा ओके आई सर। हैव फ्यू डेटाबेसेस, वन हो गया ओरेकल, वन हो गया SQL सर्वर, और आपका कुछ एक्सेल्स भी है। आपको फेसबुक से भी डेटा लेना है, यूट्यूब से भी डेटा लेना है, आपको सारे को इंटीग्रेट करके एक जी। डेटा वेयरहाउस बनाना है। सो ये हो गया ऑपरेशनल डेटा ओके सोर्सिंग। सर। नाउ you need to use a middleware. Middleware means something like where you can take the data and then post the data. Now middleware is something like your SSIS or TIBCO, ETL, then Informatica. These are all the आप जो डेलीगेशन बोलते हैं, यहाँ से लेके वहाँ रखना, ठीक है, इंटीग्रेट करना। यहाँ से डेटा लेगा मिडलवेयर जो टेक्नोलॉजी से, यहाँ पे लेके डेटा स्टोरेज में डेटा रखेगा, उसके बाद उसमें डेटा वेयरहाउस बनाएगा, उसके बाद एनालिसिस करेगा, उसके बाद रिपोर्ट्स बनाएगा। सो ये हो गया वेरी ओके ब्रॉड सर। लेवल का डिटेल। नाउ आई एम गोइंग टू द जी। प्रैक्टिकल सिनेरियो। आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में सबसे पहले तो मिलेगा OLTP डेटाबेसेस, ठीक है। ओके सर। ऐसे आपको XML मिलेगा, CSV मिलेगा, IBM DB2, Oracle and SQL सर्वर, ये सारे डेटाबेसेस हो गए। नाउ आपको अच्छा। एक डैशबोर्ड बनाना है जिसको सारे के सारे डेटाबेसेस से डेटा लेके इंटीग्रेट करके आपको एक स्क्रीन में दिखाए। वो कैसे होगा, उसको दिखाने के लिए ये सारे डेटाबेस जो डिफरेंट डिफरेंट जात का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट का है, यू नीड टू कन्वर्ट देम टू अ सिंगल एंड यूनिफॉर्म फॉर्मेट। ओके, then for that you need to collect the information and then fetch the data to a single staging layer, जहाँ पे सबसे पहले तो डेटा आके वहाँ पे पड़ जाए। उसके बाद आपको रिफाइनिंग करना है वो सारे डेटा को, एंड देन फाइन ट्यून करके ज्वाइन करके एक दूसरे डेटाबेस में रखना है, जो बोलते हैं उसको
डेटा वेयर हाउस, दिस इज व्हाट द डेटा वेयर हाउस इज। नाउ यहाँ से यहाँ तक का आपका काम करना पड़ता है इसमें SSIS में, ठीक है। उसके बाद ये हो गया डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस जो हो गया एक डिफरेंट डेटाबेस, इसमें सारे डेटाबेसेस का डेटा आके यूनिफॉर्म फॉर्मेट में रह गया। उसके बाद डेटा रह जाना और वहां से सिलेक्ट करना एक दूसरी बात होता है। वहां पे सिलेक्ट करने के लिए आपको क्यूब्स और डेटा मार्ट्स बनाना पड़ता है। ये हो गया आपका व्यूज, जो डेटा वेयरहाउस का एक एक कंपोनेंट से, ठीक है। व्यूज में आपको डेटा वेयरहाउस टेबल्स को ज्वाइन करके आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है जहां से आपको सारे के सारा इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ डेटा मार्ट एंड क्यूब्स, जो होता है SSAS के थ्रू, एनालिटिक्स टूल के थ्रू, ठीक है। बोलिए बोलिए कुछ। सर यहाँ पर एक, हाँ यहाँ OLTP में मेरा एक क्वेश्चन है सर। यहाँ तो मैं काम करूंगा तो क्या ये सर्वर ये एक्सेस के लिए क्या करेंगे सर? ये आई एम सॉरी, कम अगेन। सर यहाँ तो हम लोकल सिस्टम पर हमारा वही डाटाबेस होगा, वही टूल होगा, लेकिन हम यहाँ OLTP में देख रहे हैं SQL सर्वर, तो इसका पाथ वगैरह देंगे या कैसे हम कनेक्ट बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल, आपको एक मिडलवेयर दिया जाएगा जो SSIS सॉफ्टवेयर, और डेटा वेयरहाउस आपको टारगेट, आपका मेन टारगेट है आपको डेटा वेयरहाउस बनाना, ठीक है। एक टारगेट डेटाबेस बनाना अच्छा, जहां से आपको सारे टेबल्स का इंफॉर्मेशन आके वहां पे स्टोर हो जाए परफेक्टली, ठीक है। और सारे के डेटाबेस का फॉर्मेट होगा वो SQL सर्वर में ही होगा। नाउ आपको वो पाथ देंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग्स देंगे, यूजर आईडी पासवर्ड देंगे। सर्वर में आपको लैन में होगा सारे डेटाबेस, आप सारे के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप पहले तो एक रॉ डेटाबेस में रखोगे, इसमें उन सारे का टाइप कन्वर्जन नहीं हुआ होगा, डेटा जैसे कि जैसे होगा, फाइन ट्यून नहीं हुआ होगा, रिडंडेंसी रिमूव नहीं हुआ होगा। आपको एनालिटिक्स के लिए जो जो फील्ड्स चाहिए होता है उसको फाइन ट्यून करके एक पूरा समरी डेटाबेस में बनाना है, जो उसको बोलते हैं डेटा वेयरहाउस, और यहाँ से आप उसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ लेके रखोगे। जी ओके सर। ये सारे पहले तो डेवलपर के थ्रू होगा, उसके बाद आप उसको ऑटोमेट करके जॉब के थ्रू रन करोगे, ऑटोमेटिक वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो प्रोसेस रन होगा, तब वो ए एक्टिविटी सारे 1 2 3 करके वो प्रोसेस में जाके यहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद क्यूब जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। क्यूब में अगर 500 टेबल रिकॉर्ड है, अगले दिन वो 550 हो जाएगा, दूसरे दिन वो 600 बन जाएगा, ठीक है। वो एक व्यू हो ना, व्यू में अपडेट होता जाएगा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फाइनली ये व्यू को जब आप एक्सेस करोगे आप उसको रिपोर्टिंग करोगे। फाइनली उसका पार्ट हो गया डेटा वेयरहाउस का जो लॉजिकल नेम है रोलअप, रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ये हो गया मोलाप, ठीक है। यस सर। एंड देन आपका मेन आउटपुट है यहाँ पे VI का फाइनली रिपोर्ट्स। आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, स्कोर कार्ड्स, मोबाइल रिपोर्ट्स है, ये सारे बनेंगे किससे, आइदर आप उसको डेटा मार्ट से फेच कर सकते हो या आपके डेटा वेयरहाउस से डायरेक्ट फेच कर सकते हो। ये हो गया ऐसे सारे। तो 3 चीजें आपको सीखने मिलेगा, SSIS, SSAS एंड SSRS। SSAS में आप क्या बनाओगे बोलो? SSAS में सर क्यूब बनाएंगे। क्यूब बनाएंगे जो आपको विजुअली दिखेगा। टेबल्स और व्यूज बनाने के लिए जब आप जो क्वेरी यूज करते हैं SQL सर्वर में, यहाँ पे क्वेरी यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको सारे विजुअली टेबल्स दिखेगा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके किस रिलेशन का टेबल का डेटा कहाँ से पड़ेगा, कहाँ किस टेबल को रिलेट करेगा, वो सब कर सकते हो। फाइनली आप एक व्यू बना सकते हो, जो व्यू होगा वो ऑब्जेक्ट नाम में स्टोर हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट को आप जब फेच करोगे उसमें आपको सारे डेटा मिलेगा। वो हो गया क्यूब। ओके सर। उसके बाद SSIS का आउटपुट हो गया व्हाट, डेटा वेयरहाउस। SSAS का आउटपुट हो गया व्हाट, क्यूब और डेटा मार्ट्स। देन SSRS का आउटपुट हो गया रिपोर्ट, डैशबोर्ड, चार्ट हो गया, ठीक है। तो डेटा वेयरहाउस का इनपुट क्या है, ये सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल जो हमारा है डेटाबेस है, ठीक है। जी। और डेटा मार्ट का इनपुट क्या है सर डेटा हमारा ये डाटा वेयरहाउस है। डेटा वेयरहाउस। और आपका रिपोर्ट्स का इनपुट क्या है सर डाटा वेयरहाउस से भी ले सकते हैं, डाटा मार्ट से भी ले सकते हैं। अगर आपको एक टेबल से रिपोर्ट चाहिए होता है तो आप डेटा मार्ट क्यों बनाएंगे, उसके लिए आप तो डायरेक्ट वो डेटा वेयरहाउस से फेच कर लोगे,
अगर आपको एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, बहुत बड़ा रिपोर्ट चाहिए होता है, इसमें 15-20 टेबल का इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इसको ज्वाइन मत करो, वो सारे को एक बार ज्वाइन करके स्टोर कर दो और वहां से इन्फॉर्मेशन ले लो। अच्छा, वो हो गया आपका क्यूब। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर, तो ये हो गया आपका बेसिक ठीक है फॉर सर, योर integration services, analytics services, and reporting services. Thank you रिपोर्टिंग so much. सर्विसेज। So it is all about your basics of your data warehouse.